हालेलुया, थैंक यू यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Let us turn to the Word of God. आइए प्रभु के वचन में चलते हैं। So, last few weeks we were meditating about the Holy Spirit. और पिछले कुछ हफ्तों से हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। Sweet Holy Spirit is our best friend. और जो मीठी पवित्र आत्मा है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। So, I want everyone to meet Holy Spirit and make him as your friend. और मैं चाहता हूँ कि हर कोई पवित्र आत्मा से मिले और अपना एक सच्चा दोस्त उसे बनाए। Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। He will speak to you. वो आपसे बात करते He हैं, will walk with वो you. आपके साथ चलते हैं, He will teach you. वो आपको सिखाएंगे, He will comfort you. वो आपको आराम देंगे, He will guide you and lead you. वो आपकी अगुवाई करेंगे, आपके आगे चलेंगे। Always you need to talk to Holy Spirit. आपको हमेशा पवित्र आत्मा से बात करना When the चाहिए। Holy Spirit come upon you, you will get the power. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो आपको शक्ति मिलती है। Power means the authority. सामर्थ का मतलब होता है कि अधिकार मिलना। Don't think that you will get the power like I'm not saying that man. आप ऐसा मत सोचें कि जैसे कि किसी व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं ऐसे अधिकार आपको मिल जाएंगे। It is not like Spider-Man Shakti. ये कोई स्पाइडरमैन की जैसी शक्ति नहीं है, शक्तिमान का शक्ति नहीं है. ये शक्तिमान का शक्ति नहीं है, This is the authority. ये अधिकार है। Police has the same power among us. Police people, they have the same power which you have the power, he is having the same power. जैसे पुलिस वालों के पास अधिकार, जैसे आपके पास Power. शक्ति, शक्ति. जो सामर्थ्य शक्ति आपके पास है वैसे ही उनके पास भी होती है। But the authority he is having more than us. और अधिकार जो हमसे भी ज्यादा उनके पास होते हैं। That authority doesn't bring any power to show. अधिकार जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आप कोई शक्ति का प्रदर्शन कर सको। It is not the power in the body. ये कोई शक्ति आपके शरीर में नहीं है। It is not the muscle power. एक तुम्हारी कोई मांस की शक्ति नहीं है। You have 70 kilo, the police inspector has 70 kilo. आपका 70 किलो वजन होगा, वो पुलिस वाले का भी 70 किलो वजन Your होगा। muscle and the police inspector muscle is same. और आपके जो मसल, जैसे आपके मसल्स होते हैं वैसे ही पुलिस वाले के भी होते हैं। You both लड़ाई करेगा, both will win. आप दोनों झगड़ा लड़ेंगे, कुश्ती लड़ेंगे तो दोनों में से कोई जीतेंगे, आप दोनों जीत जाएंगे। But he is having the authority. पर उसके पास एक अधिकार है। You don't have that authority. पर आपके पास वो अधिकार नहीं है। But God has given another authority over you. पर प्रभु ने आपको एक अलग अधिकार दिया है। That is authority by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की अधिकार है। So that Holy Spirit is in you. वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। So if the Holy Spirit is in you, अगर पवित्र आत्मा आपके you अंदर है have the authority तो आपको अधिकार है, ordained by God Almighty. और जो खुदावंद ने आपको दिया हुआ है, Jesus Christ has given you the जो प्रभु authority यीशु ने अधिकार आपको दिए हुए to हैं, tread over the serpent and scorpion and all the authority of the devil. और जो अधिकार आपको सांप और बिच्छुओं के और दुष्ट आत्माओं के सर कुचलने के अधिकार दिए हुए हैं। Whatever come against you, whatever is disturbing you, you have the authority to bind it and to take authority over it and to overcome it. जो आपके खिलाफ उठते हैं, जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आपको अधिकार है कि आप उनको अपने पैरों तले रौंद सकते हैं। So when you got saved, God has sent His Holy Spirit into you. जब आपने उद्धार पाया तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपको दे दिया। So when the Holy Spirit came upon you, your body is the temple of the living God. जब पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया तो आपका जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। So in your body, the Holy Spirit is dwelling. और पवित्र आत्मा भी आपके शरीर के अंदर वास करता है। So but from that moment onwards, you are not, sometime you are not understanding whether where is the Holy Spirit. He is not speaking to you. He is not doing anything, but you cannot recognize the Holy Spirit. In that case, you need to exercise every day the relationship with the Holy Spirit. और कई बार जब आपको पवित्र आत्मा मिला हुआ है पर आप ढूंढते हैं कि पवित्र आत्मा कहाँ है, मुझसे क्यों बात नहीं करता, क्योंकि आप पहचान नहीं पाते। बहुत बार आप ऐसे ही पहचान नहीं पाते तो आप ऐसे ही सवालों में रहते हैं कि पवित्र आत्मा से बात करना काम कैसे होगा। तो इसके लिए आपको रोजाना अभ्यास करना चाहिए। When the Holy Spirit came into your body, your spirit, so you both are living in one room.
जब आपके पवित्र आत्मा आपके शरीर में आते हैं, जब वो आपकी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो आप एक ही कमरे में रहते हैं। So when you are with your friend in one room, you are talking always. जब आप अपने कमरे में एक दोस्त के साथ रहते हैं तो आप उससे बात करते You are हैं, sharing with him. आप उससे साझा करते हैं You बातों को। know what he is doing. आपको पता होता है वो क्या कर रहा है, And he know what you are doing. और वो जानता है कि आप क्या करते हैं। So the same way, you both are in you and Holy Spirit is in one room. और इसी तरह से आप और पवित्र आत्मा भी एक ही कमरे में हैं। So you understand that and recognize that, and then you start to speak with Holy Spirit and share your things with the Holy Spirit. और इसी तरह से फिर आपको पहचानना होगा, आपको ज्ञान होना चाहिए, तो आप फिर पवित्र आत्मा से बात कर पाएंगे, पवित्र आत्मा से पहचान पाएंगे। This you need to recognize that the Holy Spirit is in my room. और आपको ये पहचानना होगा, मानना होगा कि पवित्र आत्मा मेरे कमरे में है। But many times we are forgetting that somebody is in our room. और हम ये बात बहुत समय भूल जाते हैं कि कोई हमारे अंदर है। So we are going, we are coming, we are doing things, we are going through troubles, we are facing problems, but we are not understanding that the person who can solve it, he is in your room. और हम आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, इधर उधर जाकर हम अपनी परेशानियों में खोए रहते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी परेशानियों का हल करने वाला हमारे अंदर वो वास करता है। And he is your roommate, he is powerful person. Your roommate is an authorized person, but you are not sharing with him to solve your problem. आपको पता होगा कि आपके साथ रहने वाला जो व्यक्ति है, आपके अंदर रहने वाला व्यक्ति, वो सामर्थी है, वो अधिकार रखने वाला व्यक्ति है, पर हम उसके साथ अपनी परेशानियों को साझा करते ही नहीं। How you to recognize it? Every day, daily life, you need to practice. You need to start to practice from today onwards that your Holy Spirit is your roommate. आप कैसे पहचान पाएंगे? आपको हर दिन अभ्यास करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आपके साथ आपके कमरे में रहते हैं। If you are doing the exercise and you kept a time for that, every day at that time, you will make sure that you are going for that exercise and doing it. जब आप कोई अभ्यास करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उसके लिए एक समय रखते हैं और जाकर वो एक्सरसाइज, वो अभ्यास करते हैं। Every day 7 o'clock you will go for push up and whatever doing. आप 7 बजे हर रोजाना जाकर अपने डंड लगाते हैं और भी ऐसी कोई एक्सरसाइज करते हैं। The same way you need to practice with the Holy Spirit. इसी तरह से आपको पवित्र आत्मा के साथ भी अभ्यास करना He is चाहिए। your friend. वो आपका दोस्त है। Understand that he is living in you. वो आप समझे कि वो आपके अंदर वास करता है। How many of you are got saved in this room? आप इस कमरे में कितने जन हैं जिन्होंने उद्धार पाया है? So you all received the Holy Spirit. तो आप सबने पवित्र आत्मा पाया है। Already received the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा मिला हुआ है। So you may say that I am not getting, that power, आप कहेंगे मुझे वो शक्ति अब तक नहीं मिला and I don't have that. और मेरे पास ऐसा नहीं है। So this all will come in your everyday practice. ये सब आएगा जब आप रोजाना अभ्यास करेंगे। The other tongue is a gift from the Holy Spirit. अन्य भाषा पवित्र आत्मा का दान है। You have to receive it. आपको इसे लेना है। For that you need a practice with the Holy Spirit. तो आपको इसके लिए पवित्र आत्मा के साथ अभ्यास होना चाहिए। The other tongue is the tongue or the language of the Lord. और ये जो अन्य भाषा है वो भाषा परमेश्वर की तरफ से है। Sometimes that language in this, the worldly language which we speak. और कई बार वो भाषा ऐसी होती है इस संसार भाषा की तरह जो हम बोलते हैं। If you receive the other tongue, maybe you will speak Korean language. और अगर आप अन्य भाषा प्राप्त करेंगे तो शायद आप कोरिया की भाषा बोलते Maybe होंगे, you will speak other Spanish language. शायद कोई स्पेनिश भाषा बोलते We होंगे। don't know what the Holy Spirit is going to give us gift. और हमें नहीं पता कि पवित्र आत्मा कौन सा वरदान हमें देंगे, वो उसकी मर्जी है। It's a gift. ये तो दान है, We have to receive it. हमें प्राप्त करना है। 2-3 weeks before I said an example. 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक उदाहरण दिया था। The king of Bahrain called Virender, बहरीन के राजा ने वीरेंद्र को फोन किया था।
And he said, I am giving you a gift, which is a BMW car. और BMW गाड़ी देने का, तोहफा देने का वायदा किया था। So what Virender will do? तो वीरेंद्र अभी क्या करेगा? Kalioli. छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। Do you see? He will say? आप देखो वैसा कहेगा। He will tell, he will show his hand, his eyes, his mouth, everything to Charjit and me to stop the church. And I want to run for that. और वो अपनी आंख, हाथ, मुंह सब कुछ दिखाएगा कि मैं चर्च में नहीं आऊंगा, वो उस तरफ भागेगा। भाइयों गाड़ी जल्दी बुलाओ। However, he want to reach the royal court. वो कैसे भी जाकर उस महल में जाना चाहिए इसको। Tomorrow he will not go for the work, he will take off and he will go to the royal court. वो कल काम पे भी नहीं जाएगा, वो सीधा पहले महल में जाएगा गाड़ी लेने के लिए। He will get that BMW, then he will happy. जब उसको एक गाड़ी, वो BMW मिलेगा तो उसको शांति मिलेगी, It is free. क्योंकि ये मुफ्त में है। But Holy Spirit also free. पवित्र आत्मा भी मुफ्त में है, You don't have that much eager. पर आपके पास वो इच्छा है ही नहीं है। आएगा तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। God is looking our intention. प्रभु हमारी इच्छा को देखते हैं, God is looking our eagerness. प्रभु हमारी चाहत को देखते हैं। So you need to run for that. प्रभु के पास आपको इसमें दौड़ना You है, need to run behind Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के लिए भागना Make है। him as your friend, best friend. आपका एक अच्छा मित्र उसे बनाएं, Talk to him always. हमेशा उससे बात करें, Listen from him उससे always. हमेशा पवित्र आत्मा से सुने, Be with him. उसे साथ बने रहें, Pray with him. प्रार्थना उसके साथ Receive करें, from him. पवित्र आत्मा से प्राप्त करें। So when God has given you the Holy Spirit, जब प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया, God is looking some fruit from you. और प्रभु आपसे कुछ फल भी चाहते हैं। Because Galatians chapter 5 verse 22 it is written, गलातियों की किताब 5 अध्याय का 22 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। but the fruit of the Spirit is, गलातियों की किताब 5 अध्याय का 22 वचन, और जिसमें लिखा है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं। Spirit has some fruit. आत्मा के कुछ फल हैं। You got it? आपको मिला? Galatians गलातियों की chapter किताब 5 5 अध्याय का 22 और 23 वचन। Spirit has some fruit. आत्मा के कुछ फल हैं, It is written in the Bible. बाइबल में लिखा हुआ है। So here Apostle Paul is writing to the church in Galatia that symbolizing the Holy Spirit like a tree and it is bearing the fruit. और यहाँ पर पौलुस गलातियों की चर्च को लिखता हुआ कहता है कि देखो, एक जैसे कि पवित्र आत्मा एक पेड़ है और उसके बहुत सारे फल हैं उसके अंदर। So don't tell somebody that the Pastor Daniel said Holy Spirit is a tree. आप जाकर बाहर किसी को ऐसा मत कहना कि पास्टर डैनियल ने कहा कि पवित्र आत्मा तो पेड़ है। It is symbolized in the Bible that it's like the Holy Spirit is like a tree which brings the fruit. और ये तो एक बाइबल ने सिर्फ एक निशान दिखाया है कि पवित्र आत्मा एक पेड़ की तरह है जो फलदायक है। So we will understand then how the Holy Spirit works. और इसी तरह से हम समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा है क्या। You just imagine that a tree which brings the fruit. और आप एक ऐसे पेड़ को अपने मन में समझें कि जो फल देने वाला है। Orange tree, apple tree, coconut tree, mango tree, many trees are bringing fruits. संतरे का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, नाशपाती का पेड़ होता है, ऐसे बहुत सारे फल लेके आने वाले पेड़ होते हैं। How these trees are bringing the fruit? ये सारे जो पेड़ हैं फल कैसे लेके आते हैं? It's all created by God. When in Genesis chapter 1 you can see God created and God said that let every trees come which bring its fruit. और खुदावंद ने इन सब पेड़ों को बनाया। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, प्रभु ने पेड़ को बनाया और कहा कि पेड़ अपनी जिन्स के अनुसार फल पैदा करे। So if you need an orange, जब आपको संतरा चाहिए,
You need to plant an orange. Somebody has to plant a orange tree. और जो जिसको संतरा चाहिए तो उसे संतरे का पेड़ ही लगाना चाहिए। You don't think that the Lulu people are bringing the orange from the mission. आप ऐसा मत सोचिए कि ये लुलु जो मार्केट है वो मशीन से संतरे लेके आते हैं। It's not coming from the mission, it is coming from the tree. ये मशीन से पैदा होकर फल नहीं आते, वो सब फल पेड़ से आते हैं। So someone has planted the trees in somewhere. और कहीं पर किसी ने पेड़ लगाए हुए हैं। So does there in Punjab there is orange tree? बहुत है। Yeah. So you know better than me. पंजाब में बहुत सारे पेड़ हैं, आप लोगों को पता है कि संतरे कैसे वहां पर उगते So हैं। if you want to eat the orange, then you have to plant the seed. अगर आपको संतरे खाने हैं तो संतरे के पेड़ लगाने पड़ेंगे। So if you want to plant the seed, you have to prepare the land. अगर आपको उस बीज को, पेड़ के बीज को बीजना है तो आपको भूमि तैयार करनी पड़ेगी। So remove the stones, आप पत्थर हटाएंगे, dig and make a hole, आप एक डुंगाई में जाकर एक खड्डा निकालेंगे, prepare that mud आप मट्टी को तैयार करेंगे, and put some manure. आप उसमें कुछ खाद पदार्थ ऐसे डालेंगे, Then you put the seed, फिर आप बीज डालेंगे, then you have to put the water, फिर आप पानी डालेंगे, and then you have to cover it that the birds should not come and take the seed. आप उसको ढांक देंगे कि ताकि कोई पंछी आकर उसे चुरा ना ले। You have to look after it every day. आप हर दिन उसे आकर देखेंगे, Then slowly every day you give water, it will sprout. जब आप रोजाना पानी देंगे तो कुछ वहां से The leaf उगेगा, will come. तो पत्ते निकलेंगे, Then it will start to grow. फिर वो बढ़ना शुरू होगा, Then it needs sunlight. फिर उसे सूर्य की रोशनी It चाहिए, need water. उसे पानी It चाहिए, need manure. उसे और भी पदार्थ चाहिए, Every day it will grow. फिर हर दिन वो बढ़ता You रहेगा। have to put some stumps and to bind so that the wind will not make it broken. आप उसके साथ कोई और एक चीज लगाएंगे जिसके साथ के हवा उसे गिरा ना सके। So after 3 year or 4 year or 5 year, I don't know, after 3 year minimum, then the flowers will come. और कम से कम 3 या 4 या 5 साल, मुझे ज्यादा पता नहीं, बट कम से कम 3 साल के बाद उसमें फूल निकलेंगे। That also will come on the season only. और फिर भी वो सिर्फ अपनी रुत के हिसाब से ही आएंगे। Every tree will blossom its own season. हर एक पेड़ है अपनी रुत के अनुसार ही फल देता है। Every month it will not flower. हर महीने उसमें फूल नहीं आते। So there is a time God has set to flower, to blossom, to have the fruit. और हर एक पेड़ के लिए खुदावंद ने एक रुत बनाई है, उसी ऋतु में ही वो फल लेके आता है, फूल लेके आता है। Then the climate must be the matching, or the climate must be good to have that fruit. और उसके लिए मौसम वैसा अच्छा होना चाहिए ताकि वो फल लेकर आ सके। If there is more rain, then maybe the fruit will go down. अगर ज्यादा बारिश होगी तो शायद वो पेड़ नीचे गिरेगा। Then if there is more wind, the flower will go. अगर ज्यादा हवा हुई तो उसके पंखड़ियां उड़ जाएंगी। Climate also should be good. उसका जो मौसम है, हालात भी अच्छे होने चाहिए। Sometimes the pesticides to be applied. मक्खी आएगा भाई, वो जाने। कभी कभी आकर मकड़ी वगैरह भी आकर उसे खाएगा। So you have to put the pesticides. तो फिर आप उसके आसपास में दवाई वगैरह ऐसा डालते हैं। There is a right time to blossom. There is a right time to the ripe for the fruit. और एक समय आता है jab उसे फूल पैदा करना है, समय आता है उसके फल पैदा करना You है। have God has given you a season to flower it. God has given a season to have fruit. God's season should not waste. खुदावंद ने आपको एक समय दिया है, आप फूलो। एक समय खुदा ने दिया है कि आप फल लेकर आओ। एक समय दिया है खुदावंद ने आपको आशीष देने So के लिए। think that the Holy Spirit is like a
a tree. आप ऐसे सोचें कि पवित्र आत्मा एक पेड़ की न्याय है। When you got saved, God has sent the seed of the Holy Spirit into your spirit. और जब आप उद्धार पाए तो परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा का बीज आपकी आत्मा में बो दिया। So the seed, like a baby, which came in fullness. और एक बच्चे की न्याय वो बीज है जो संपूर्णता में आपको मिलता है। So when the Apostle Paul is telling to the church that there is the fruit of the Spirit you should have. और पौलुस फिर चर्च को लिखता है कि आत्मा के फल हैं जो आप में होने चाहिए। So the Spirit which came into your spirit, it's like a seed which has to grow like a tree, then only the fruit will come out. और जो बीज आपको आत्मा में दिया गया है, जब वो आपको मिला तो वो बढ़ना चाहिए, तो समय पर आकर वो फल देगा। Now when you got saved, God has sent His Holy Spirit into your spirit. It is a seed. Then it is your duty to make sure that seed to sprout, that sprout to come like leaves. Then that the small tree must grow into its right time and to have the blossom, the flower and the fruit. और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में बीज बोया गया है, वो बीज बोया हुआ वो फूटना चाहिए, उसकी पत्तियां बाहर आनी चाहिए, वो छोटा सा पेड़ बड़ा होना चाहिए, उस पेड़ की पंक्तियां निकलनी चाहिए, वो फूल निकलने चाहिए, वो फल देना चाहिए। So our Lord Jesus said in a parable that a sower went for sowing the seed. Some of the seeds went to the roadside, some went into the rocky area, some of the seeds went into the thorns, and some he put into the good land which grow and brought 100-folds of fruits. और प्रभु यीशु ने भी एक दृष्टांत दिया कि एक बीज बोने वाला जब बीज बो रहा था, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, कुछ बीज रास्ते में गिरा, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा। जो अच्छी भूमि पर गिरा वो 100 गुना फल लेकर आया। So where the Lord has sent the Holy Spirit into your spirit. और कहां पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा आपकी आत्मा में। So how is your land? अभी आपकी धरती जो भूमि कैसी है, How is your soil? आप कैसे उसे बीजा है। Is that the seed has planted in a rocky area? अगर वो पथरीली भूमि पर गिरा है, Does your heart is like rock? क्या आपका जो हृदय वो पत्थर है? Your heart is your spirit is the soil. और आपका हृदय ही आपकी आत्मा में बीज बोता है। If your soil is good, then your plant will grow. जब अगर आपने अच्छी जगह बीज दिया तो वो अच्छा फल लेके If आएगा। your heart is having some wrong ideas and wrong things and the ugly or wrong thoughts, then that soil is bad. अगर आपके हृदय में कुछ गलत विचार हैं, गलत बातें हैं, कुछ गलत काम हैं, तो वो गलत जगह पर बीज बो दिया गया है, That soil is wrong. तो वो बोना ही गलत हो It गया। is a rocky area or it's a thorny area. और ये तो पथरीला जमीन है, यहाँ पर वो बीज गया है। Some seeds are went into the roadside. और कुछ जो जमीन की जो रास्ते में कुछ बीज गिरे, What are the seeds left in the roadside? The birds came and ate it. और जो रास्ता पे बीज गिरा, पक्षी आए और उसे चुरा कर खाकर चले गए। Some people, they will come to the church and they will listen the word of God, but the same time after they listen, the devil come and take the word of God from their heart. When they go back to the room, they don't know what the pastor preached. और कुछ लोग ऐसे ही कलीसिया में आते हैं, आकर वचन सुनते हैं, लेकिन उसी समय दुष्ट आत्माएं आकर उनके हृदय से वो वचन को चुरा लेती हैं, वो वापस जाते हैं और घर जाके उन्हें पता ही नहीं होता कि आज पास्टर ने क्या प्रचार किया है। You need to take victory over that. आपको इसके ऊपर जय पाना है। Some people, when they come to the church, they will start sleeping.
और कुछ लोग जब कलीसिया में आते हैं वो सोना शुरू कर देते because हैं, they are sitting on the roadside. क्योंकि वो रास्ता पे बैठे हुए हैं The devil is coming and taking the word from their heart. और शैतान आकर उनके हृदयों में से वचन चुरा लेता To है। fast and pray and take the victory. और आपको उपवास करके प्रार्थना करके इसके ऊपर जय पाना है। You need a desire in your heart that I need to take the victory. आपके अंदर ये चाहत होनी चाहिए कि मुझे जय पाना है इसके Because ऊपर। this is stopping my blessings. ये तो मेरी आशीषों को रोक रहे हैं। You need to make sure your soil is best soil that the Holy Spirit, the tree is to grow. और आपको ये ख्याल रखना है कि जो बीज आप पवित्र आत्मा में बीज रहे हैं वो अच्छी भूमि पर बीज होना चाहिए। Some seeds are went into the thorny areas. What is that? They are thinking about the lot of the worldly things and their workplace problem, their family problem and financial problem, physical problem. They are thinking and thinking and thinking and forgetting about the godly things and the word of God, and their seed is just gone out. और कुछ लोग जैसे झाड़ियों में बीज बोया हुआ है, वो संसार की चिंताओं के साथ, घर की चिंताओं के साथ, परिवार की चिंताओं के साथ, काम करने की चिंताओं के साथ में और दुनिया भर की चिंता के साथ में चर्च में आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो उनका बीज जो है वो झाड़ियों पे बोया गया और वहीं पर मर गया है। Some seeds are kept on the rocky area. It grow very fast, but after some time, when the root went and touched to the rock, the sunlight came, the heat, because of the heat, that tree is vanished. कुछ जो पथरीली भूमि पर ऐसे भी होते हैं, वो बीज पत्थर का हाँ पथरीली वही पत्थर, वो क्या होते हैं कि वो थोड़ा सा उगते हैं, जब उनकी जड़ें नीचे जाती हैं तो पत्थर के साथ ऊपर ही रह जाती हैं, तो जब सूर्य की रोशनी आती है तो वो मुरझा जाती हैं। That means they don't have the word of God. इसका मतलब उनके पास खुदा का कलाम नहीं है। In weekly only once, in Friday 1 hour they come and receive the word and go. Next week only they will see the word of Bible. और एक हफ्ते में आकर शुक्रवार के दिन वो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर बाद में दूसरे हफ्ते शुक्रवार को ही बाइबल को देखते हैं। So, but the seed which sowed into the good land, जो बीज अच्छी भूमि पर बो दिया गया, before coming to the church you need to make your land best. चर्च आने से पहले आपको अपनी भूमि को तैयार करना चाहिए। Preparation in the land for the sowing the seed. आपको भूमि तैयार करना चाहिए कि उसमें वचन रूपी बीज बोया जाए। If you come with no preparation, you will just simply sleep here. और अगर आप बिना तैयारी के आएंगे तो आप यहाँ पर नींद लेने के आए हैं। And I have no objection that at least you can sleep in the church. और मुझे कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है कि आप चर्च में सो रहे हैं। So you prepare your land perfect so that the word of God when it comes, it will be like a seed, will be sowed into your good soil which is your heart, and that seed will come to grow. आप अपनी भूमि को तैयार करो, ऐसा तैयार करो कि जब वो पवित्र आत्मा का बीज बोया जाए तो वो एक अच्छा फल लेकर आए। Then you need to put the water. फिर आपको पानी देना है। Word of God is the water. परमेश्वर का वचन ही पानी है। When you got saved, God planted the seed, but it is your duty to put the water. अब जब खुदावंद ने आपको उधार दिया तो उसने बीज बो दिया, अभी आपकी ड्यूटी है कि आप पानी दें, हर दिन पानी Every दें। day you need to give the word of God. हर दिन आपको पवित्र वचन उसे देना है, Read it and meditate it. उसे पढ़ना है वचन को और ध्यान करना है वचन का, Pray it. प्रार्थना करना है, So your seed will get the water. तो आपके बीज को पानी मिलेगा। And you need to caring that seed. फिर उस बीज का ख्याल भी रखना है। The Jesus said another parable. यीशु जी ने एक अलग दृष्टांत दिया A था। man sowed the seed into his field, एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर बीज बोया and his servants went for sleep. और उसके सेवक जाकर सो गए, In between the Satan come with the weeds. और कोई विरोधी शैतान आकर एक नया बीज लेकर आया
And when it grows, this both started to grow. और जब उसने बो दिया तो दोनों बढ़ना शुरू हो गए, तो दोनों एक साथ बढ़े। And his servants went to the master and said, Master, we saw the good seed, now the weeds also growing in between. और जाकर अपने मालिक से सेवकों ने कहा कि मालिक, हमने तो अच्छा बीज बोया था, लेकिन साथ में गलत बीज भी आ गया है। But master said, the servants asked him, shall we remove the weeds from between? और जाकर सेवकों ने मालिक से कहा, क्या हम इस झाड़ियों को निकाल दें? No, 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 now it is not the time. और मालिक ने कहा, नहीं, अभी वो समय नहीं है। Now when you wait till the harvest, so that time we will cut it and separate it. और मालिक ने कहा कि नहीं, जब काटने का समय आएगा तो हम काटेंगे और इसे अलग करेंगे। This is because you went for sleep when you were supposed to wake and to look after your seed. और क्योंकि तुम जो जाकर सो गए थे, तुम्हें तो चाहिए था कि उस बीज का ख्याल रखना चाहिए So था। when you hear this word of God, don't just go back and sleep. You meditate the same word of God and pray about it and receive it. Make sure that what you heard today, you receive it in your spirit. और ऐसा ना हो कि आप यहाँ से वचन सुनकर जाकर सो जाओ, नहीं, इसके ऊपर ध्यान करो ताकि जो आपके बीज बोया गया उसका ख्याल रख सको। Take care about the seed. बीज का ख्याल रखो। Take care about the Holy Spirit in you. पवित्र आत्मा का संभाल करो जो आपको दिया गया And है। time to time you need to put the fertilizer और समय पर आपको उसको पदार्थ देने चाहिए। and the pesticides, और जैसे कि खाद्य पदार्थ देने चाहिए, so that at the right time the tree will grow. और समय पर, अच्छे समय पर वो पेड़ बढ़ता रहेगा। Jesus said another parable. खुदावंद यीशु ने एक नया दृष्टांत बताया। There was the vineyard, एक अंगूर की बाड़ी थी, and in between there was a fig tree. और उनके बीच में एक अंजीर का पेड़ था। The master was looking 3 years for the fruit. और मालिक ने 3 साल तक उसके फल का इंतजार किया, But there was no fruit. पर कोई फल नहीं था। So the master came to और- the husbandman. और मालिक ने आकर उस माली से कहा, I am looking 3 years the fruit, but this tree is not giving any fruit, so cut it. और उसने आकर कहा कि 3 साल से मैं इस पेड़ से फल देख रहा हूं, पर ये कोई फल नहीं दे रहा, इसे काट दे। How many years now you received the Holy Spirit and where is the fruit? कितने साल हो गए आपको पवित्र आत्मा पाए हुए, फल कहाँ है? And the husbandman said to the master, Master, let me try one more year. और माली ने कहा कि हे मालिक, 1 साल और इसे दे, Let me dig it. मुझे इसे खोदने दे, Let me put some manure. और मुझे कुछ खाद्य Let me पदार्थ put डालने दे, some water. मुझे पानी डालने दे, And let me try one more year. 1 साल मुझे और कोशिश करने दे। This is the grace. वो है अनुग्रह। Because you are planted to have fruit, but 3 years God is looking from you the fruit, but it is not coming. But because of Jesus Christ, He is giving you the grace, and Jesus is standing in between you and the Father. Because of the grace, we are again going one more year. और ये है अनुग्रह जो हमको पवित्र आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा देने के बाद कोई फल नहीं है, 3 साल इंतजार हुआ तो हमारे अंदर कोई फल नहीं है, तो क्या हुआ? अभी प्रभु यीशु और आपके और पिता के बीच में है, ताकि एक और अनुग्रह का साल आपको मिल जाए, ताकि आप चुने गए हैं फल लेके आने के लिए। This year also Jesus is pleading for us. आज भी प्रभु यीशु आपके लिए वो जो खेती को बार बार उसको छांटते झाड़ते हैं ना, फल लेके आने के लिए, ऐसा कर रहे हैं। He is pleading in between God the Father to keep us to have the fruit, give one more year. और आज भी वो बेनती करते हैं कि 1 साल इनको और भी दे दे ताकि ये फल लेकर आएं। It is not because of your prayer. ये आपकी प्रार्थनाएं नहीं हैं, It is Jesus who is pleading for us to the Father. और ये प्रभु यीशु है जो हमारे लिए आज भी बेनती करते हैं। Where is the fruit? फल कहाँ है?
One more year is granted to you. एक साल और आपको दिया गया है, One more year is granted to me also. मुझे भी एक साल दिया गया है। Check what happened to our seed. आप देखो कि आपके बीच में क्या हो गया। Does my land, my soil is good? क्या मेरी भूमि जिसमें बीज बोया गया क्या अच्छी है? Or my heart is rocky heart? क्या मेरा हृदय पत्थरीला है? Or my heart is like a roadway? और या तो मेरा हृदय वो रास्ता की तरह है? All the thoughts can come to my mind. क्या मेरे विचारों में हर एक संसार के विचार आते रहते हैं? You need to stop. Don't stand on the roadside. आपको रास्ता पे खड़े नहीं होना है, वहां रुकना है। Or your heart is like a thorny place. और क्या आपका जो हृदय है वो झाड़ियों की तरह है? You are a child of God. Your soil, your heart must be like a good soil which can plant the seed. आप परमेश्वर की संतान हैं, आपका हृदय एक अच्छा बीज लेने वाला भूमि होना चाहिए जिसमें अच्छा बीज बोया जाए। That means you need to have a desire, Lord, give me your word. I want to hear your word. Always you need a thirst that I need to hear the word. I want to read the word of God. I want to meditate the word of God. I want to obey the word of God. I need the Holy Spirit. That desire, if you have, that means your soil is a good soil. आपके हृदय में इच्छा होनी चाहिए, आपको चाहत होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे अच्छा बीज बोने के लिए मुझे भूमि चाहिए, मुझे अच्छा फल लेके आने के लिए पेड़ चाहिए। ऐसी आपकी चाहत होनी चाहिए, तो आपको ऐसा होना चाहिए। Then the next thing is your climate. दूसरी चीज है जो आपका मौसम। The weather condition is important. मौसम के हालात जो बहुत जरूरी हैं। So if the weather is bad, the tree cannot bear the fruit. अगर मौसम खराब है तो पेड़ फल नहीं लेके आता। In this Bahrain, there I have seen some places the coconut tree. और बहरीन में मैंने बहुत सारे कोकोनट हिंदी में नारियल के पेड़ देखे हैं। उनको केरला में लेके जाए। There are some people planted the coconut tree in Bahrain. Have you seen? बहरीन में बहुत लोगों ने नारियल के पेड़ लगाए हैं, क्या आपने कभी देखे हैं? But there is no coconut. पर नारियल उसमें उगते नहीं हैं। Why? What is wrong? क्या गलत हो गया? Because the weather is bad. क्योंकि मौसम खराब है। This is not the climate which the coconut grow. ये मौसम वो नहीं है कि जिसमें नारियल के फल उगें। But if you plant the khajur, then it will grow. It will bring the fruit every year. अगर आप उसी की जगह पर खजूर का पेड़ लगाएंगे तो हर साल वो फल लेके आएगा। Because the climate is made for that tree. क्योंकि ये जो मौसम है वो उसी पेड़ के लिए फल लेके आने के लिए है। That tree is made for this climate. वो पेड़ इसी मौसम के लिए बनाया गया है। I went to Muscat or Salala. Muscat Salala. पासे जी एक मास्कट सलाला में गए थे। There are a lot of coconut tree. और बहुत सारे नारियल के पेड़ वहां पर हैं। That also in a Gulf country. वो भी इस गल्फ कंट्री में है, देश में है। But that climate is good for that coconut. पर वो मौसम उस नारियल पेड़ के लिए अच्छा है। If I plant a orange tree in Kerala, my house, it will not grow. अगर मैं अपने केरला घर पे ऑरेंज संतरे का पेड़ लगाऊं तो वो नहीं उगेगा। But I have another one fruit tree. What is called that? I don't understand. Chiku. Chiku, you saw the chiku fruit? It's very tasty, sugary, too much sugary. और एक और पेड़ है केरला में जिसका नाम चीकू है, बहुत ही मीठा होता है वो। I planted in my front of the porch. और मैंने अपने घर के सामने लगाया हुआ है। It grows there. वहां पर बढ़ता है। It brings lot of fruits. वो बहुत फल लेके आता है। And every month it flowers. हर महीने फूल उगते हैं। In all the month, every day there are fruits.
और हर महीने उसको फल भी लगते हैं, That climate is perfect for that. और क्योंकि वो मौसम उसके लिए अच्छा है। If you want to bring the fruit, अगर आप फल लेके आना चाहते हैं, you should make sure your climate is perfect for your seed. आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके बीज के लिए मौसम अच्छा होना चाहिए। Climate means what the seed need that you should give. मौसम का मतलब क्या है? जो बीज को चाहिए वो आपको देना है। The tree needs the rain, अगर पेड़ को बारिश चाहिए the tree needs the sunlight, और पेड़ को सूर्य की रोशनी भी चाहिए, and some seeds doesn't need 50 degrees, some seed only need 20 degree. और कुछ पेड़ है जिनको 50 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, उनको 20 डिग्री ही चाहिए। So your seed, the spirit which is in your spirit, जो बीज आपकी आत्मा के अंदर है, need prayer, उसको प्रार्थना चाहिए, need word of God, उसको वचन चाहिए, need worship, उसको आराधना चाहिए, need good testimonies, उसको अच्छी गवाहियां चाहिए, need to think good thinkings. उसको अच्छे विचार चाहिए। Your climate, you should make it properly. आपको वो मौसम उसे अच्छा बना कर देना है। Your prayer time, you should not leave. आपका You have to प्रार्थना go समय and मत pray. छोड़िए। That time don't go and sit with the TV. आप टीवी के साथ जाके मत बैठो। Your word of God, when you are set a time for reading the word of God, you should not avoid that time. Don't go and cook, you go and read the word of God. जब आपने पवित्र वचन पढ़ने का समय ठहराया तो जाकर खाना मत बनाओ, जाकर वचन पढ़ो। And your worship time, you should not go for roaming in Manama, you should go for the worship only. आपकी आराधना के समय पे आप जाकर मनामा में मत घूमो, आपको आराधना करो। If you avoid your climate, you are avoiding the rain upon your seed, you are avoiding the sunlight upon your tree, then your tree will not grow and your fruit will not come down. अगर आप मौसम को ठुकरा देंगे तो आपके बीज को बारिश नहीं मिलेगी, बीज को सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, तो आपका बीज मुरझा जाएगा। Make sure your climate you have set perfectly for your growth. आप अपने बढ़ने को, अपने बीज के लिए जो मौसम आपने बना कर रखा है, ध्यान रखो कि वो संपूर्ण अच्छा होना चाहिए। Avoiding the wrong friendship. आप गलत रिश्तों को जुड़ना बंद करो। Don't be mixed with the people who talk the bad words. आप उनके साथ जाकर मत जुड़ जाओ जो गंदी बातें करते हैं, Don't be friend with the people who give you bad ideas. और जो आपको गलत सुझाव देते हैं, ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो। Don't sit with the people who mock others. और ऐसे लोगों के बीच जाकर मत बैठो जो दूसरों के लिए कुड़कुड़ाते हैं। So you need to set your climate perfectly for your growth. आप अपनी बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा मौसम बनाकर रखें। Set apart from the wrong friendship. आप अपनी गलत दोस्ती को छोड़ दीजिए Set apart from the wrong hearing. और गलत सुनने वालों से आप हट Set जाइए, apart from the wrong watching. और जो गलत देखने वाले हैं उनसे अलग हो Set जाइए, apart your mind from the wrong thoughts. और गलत विचार रखने वालों से अलग हो जाइए, Set apart from the people who is asking you to do the unrighteous things. और जो आपको गलत बातें करने के लिए, धार्मिकता की बातों से अधर्म की बातें करने के लिए ज्यादा लेके जाते हैं, ऐसे लोगों से अलग हो The जाइए। tree is symbolizing eternal life, और जो पेड़ होता है वो अनंत जीवन को दिखाता है, divine provision. और दिव्य Provision. Provision means availability. और जो दिव्य चीजों को मतलब आपको देने के लिए वो होता है, Tree symbolizing growth. और जो पेड़ होता है वो बढ़ोतरी को दिखाता है, Tree is symbolizing prosperity. और जो पेड़ होता है वो तरक्की को दिखाता There है। is a tree which is mentioned in the Bible in the first chapter, tree of life. और जो पहले अध्याय में हम जब उत्पत्ति में देखते हैं तो जीवन का वृक्ष पेड़ लिखा हुआ है, That is showing eternal life. वो दिखाता है कि वो अनंत काल का जीवन है। And while the tree of knowledge of good and evil symbolize the moral choice and its consequences. और जो बुद्धि और ज्ञान का जो पेड़ वृक्ष दिखाया गया है वो दिखाया गया है आपकी
समझ और बुद्धि के बारे In में। Psalms chapter 92 verse 12 says that the a righteous person is compared to a tree planted by water, always yielding fruit and prospering in all their ways. 92 Psalms 92:12. भजन संगीता 92 का 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूलें फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। Here the righteous person is compared to a tree. और यहाँ पर धर्मी लोगों को एक पेड़ से समान जोड़ा गया है And planted by the water. और पानी के साथ जोड़ा गया And है। that tree always yielding fruit. और वो पेड़ हमेशा फल लेके आता And है prospering in all their ways. और हर जगह पर वो तरक्की पाता है, फलता है। Now you know why you are prospering, why you are not prospering. अभी आपको पता चला कि आप अभी तक क्यों फूलते फलते नहीं हो। You need to be planted by the water. आपको पानी के साथ बढ़ना है। You need to be a righteous person. आपको धर्मी व्यक्ति बनना है। And that righteousness which Jesus has already made you, और जो धर्मी प्रभु यीशु ने आपको बना दिया you है, have to walk in righteousness. आपको धार्मिकता में चलना भी है। You have to give the water and the food to your seed. और आपके बीज को आपको पानी और पदार्थ देने हैं। So we are symbolized like a tree. और हम एक पेड़ की समान हैं। In Psalms 128:3, भजन संगीता 128 का 3 वचन। भजन संगीता 128 उसका 3 वचन। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। if you are a righteous person, you are compared to a tree planted by the water. और अगर आप धर्मी व्यक्ति हैं तो आप एक ऐसे पेड़ होंगे जो पानी के बीच में फुलवंत होने वाला व्यक्ति होगा। Tree. पेड़ होगा। Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. और आपकी तीवी जो स्त्री है वो फलवंत दाखलता की सी होगी। Your children like olive plants all around your table. आपके बच्चे हैं जो चारों तरफ से जलपाई के पौधे के जैसे समान होंगे। So we are the trees हम पेड़ हैं, mentioned in the Bible. बाइबल में लिखा गया God है। is looking fruit last 3 years. प्रभु हमसे 3 साल से वो फल को देख रहे And हैं। Jesus has granted by grace 1 more year. और खुदावंद यीशु के द्वारा हमें 1 साल और अनुग्रह का मिला है। So you need to give water and you need to make sure the climate is perfect. आपको देखना है कि पानी और मौसम आपके बीज को मिलता है। Means you need to avoid the things which is not good for your growth. आपकी बढ़ोतरी के लिए जो चीजें अच्छी नहीं है उसको आपको हटाना है। You need to make your atmosphere that your spirit will grow. आपको ऐसे हालात बनाने हैं कि आपकी आत्मा की बढ़ोतरी हो। In the olden days, in our fellowship, Malayalam fellowship, there are some brothers, those who say to the company that I don't need your overtime, I want to go for church. और हमारे पिछले समय में जब हमारा मलयालम का सर्विस होता था तो कुछ भाई ऐसे होते थे, वो जाके कहते थे कि भाई हमें ओवर टाइम नहीं चाहिए, हमें चर्च जाना है। So they avoid it. Friday, they don't take the overtime and they will go for, because they want to go for the church, they will start from early morning. That time, not this bus, the old transport bus, 25 fields, I think. Yeah, 25 fields or 50 fields, they can go all around Bahrain. So they will start from Askar, morning 9 o'clock, they will reach Manama 12 o'clock. और वो क्या करते थे कि पुरानी बसें होती थी, उसमें 25 पैसे का किराया होता था कहीं पर भी जाने के लिए। तो अस्कर से वो 25 पैसे ऐसे शुरू करते थे, वहाँ से अस्कर से सुबह के समय पर 12 बजे वो मनामा पहुँचते थे। So then they will come to the church and they will make everything ready, and after the service they will go by night. और वो चर्च में आते थे, सब कुछ तैयार करते थे, सब कुछ मिलकर करते थे, और फिर चर्च के बाद वो रात को पहुँचते थे। If it is very late, then some church people will drop them
in their car to their house after the food, then otherwise they will go by bus. अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी तो कुछ चर्च के भाई उनको वहाँ पर छोड़कर खाना देकर सब छोड़ के आते थे, नहीं तो वो बस में जाते थे। It is our intentions. ये हमारी चाहत है, It is our desire that I want to grow spiritually. ये हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आत्मिक बढ़ना है। But in Malayalam there is a saying, मलयालम में कुछ ऐसा कहते हैं, I have something in my, मेरी बगल में ऐसा कुछ है, I want to take what is kept here also. और जैसे सोचिए कि मेरी बगल में कुछ है और So मुझे if I want, if I want to take this, I have to leave this. अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे बगल से पहले वो छोड़ना पड़ेगा। But I don't leave this also, I want to take that also. मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मुझे ये भी चाहिए और मैं इसे भी पकड़ के बैठा हूँ, ऐसा दोनों चाहिए. दोनों चाहिए, It will not work. ये काम नहीं होगा। If you want to grow spiritually, अगर आत्मिक बढ़ना है you have to leave something which is troubling you spiritually. और आपको वो छोड़ना होगा जो आपको परेशान करता है आत्मिक बढ़ोतरी से। If you want to grow spiritually, अगर आत्मिक बढ़ना है you have to stop what is subjecting you spiritually. और जो उसे छोड़ना है जो आत्मिक आपको रोक रहा है, You need a desire. आपको इच्छा होनी चाहिए। When Jesus came into a village, जब प्रभु यीशु एक गांव में आए, there was a blind man. वहां पर एक अंधा व्यक्ति था People said to heal him. और प्रभु को लोगों ने कहा कि इसे चंगा कर दे, Jesus held his hand and he brought him out of the village. और प्रभु यीशु उसे पकड़कर लेकर गांव के बाहर लेकर आए And he spit upon his eyes. और उसकी आंखों में थूका And then he laid his hands and prayed for him. और अपनी उसकी आंखों पे हाथ रख के प्रार्थना किया। And then Jesus asked him, और प्रभु यीशु ने उसे पूछा, what are you seeing? तुझे क्या दिखाई दे रहा है? And the man answered, और उस व्यक्ति ने जवाब दिया, he looked up and said, I see men like trees walking. और उसने कहा मुझे मनुष्य ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि पेड़ हैं। मनुष्य को कैसे देख रहे? पेड़ के जैसे देख रहे. Then again Jesus prayed for him. और फिर प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। Then he asked how it is now. और फिर पूछा अब कैसे Now he है? saw clearly. अभी उसे साफ दिखाई दिया। So Jesus himself prayed for a man. प्रभु यीशु ने आप खुद एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया Then he asked what you see. और उसे पूछा तुझे क्या दिखाई दे रहा है? I see men like a tree. उसने कहा मुझे व्यक्ति ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि पेड़ हैं। That is his spiritual eye. वो उसकी आत्मिक आंखें That थी, is his spiritual revelation. वो उसका आत्मिक ज्ञान था। So spiritually he saw people like tree. आत्मिकता में वो लोगों को पेड़ की न्याय देखता है। Again Jesus prayed and his physical eye opened. और जब प्रभु यीशु ने फिर प्रार्थना की उसकी शारीरिक आंखें खुली, He saw everything clearly. फिर अभी उसे साफ दिख रहा है। Sometimes you will not see clear things. आपको कई बार कुछ क्लियर नहीं दिखता Some है word of God you will read and you don't understand what it is. और आप पवित्र वचन को पढ़ते हैं पर आपको समझ नहीं आता कि क्या You need कहता to है। get it spiritually first. पहले आपको आत्मिकता में चाहिए, Then you pray about the word of God. फिर आप प्रार्थना प्रभु के वचन के लिए Then you कीजिए, meditate it. फिर आप उस पे ध्यान Then कीजिए, you will see the clear answer of from that word of God. फिर आप उस वचन को साफ साफ देख पाओगे क्या उसका जवाब है। Sometime immediately you will not get the clear answer from God. कई बार आप सीधा जवाब परमेश्वर से नहीं पाते हैं It is something blurring. और उसमें कुछ धुंधला होता है। But when you pray more, जब आप ज्यादा प्रार्थना when करते you हैं, pray second time, जब दूसरी बार प्रार्थना you करते will हैं, see clearly. फिर आपको साफ दिखाई देता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So, the movement of the tree suggests life and activity. और जो पेड़ का हिलना जुलना दिखाता है कि उसमें जीवन है और वो चलता फिरता है। Sometimes we may see partially only. Sometimes we see partially. Half. हाँ, कई बार हम आधा ही देखते हैं। Sometimes we are spiritually blinded. कई बार हम आत्मिकता में अंधे होते हैं। But
we need our spiritual eyes to be open. हमें चाहिए कि हमारी आत्मिक आंखें भी खुल Then we जाएं, will understand who we are. तो हमें समझ आएगा कि हम कौन हैं, How is our tree's condition? हमारे पेड़ की हालत कैसी है। So Jesus' willingness to heal the blind man shows his compassion and desire for us to see clearly both physically and spiritually. और प्रभु यीशु का उस अंधे व्यक्ति को ठीक करना दर्शाता है कि प्रभु कितना तरस हम पर करता है और हमारी उसकी इच्छा है कि हम आत्मिक और शारीरिक दोनों तरफ से देख पाएं। Matthew chapter 12 verse 33 says, मत्ती की किताब 12 अध्याय का 33, 33 वचन, a tree is identified by its fruit. यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उनके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। Tree is identified by its fruit. और जो पेड़ है अपने फल से पहचाना जाता है। Sometimes we may not understand whether it is orange or lemon. और हमें कभी कभी समझ ही नहीं आता कि ये नींबू है कि संतरा है। The leaves are same. पत्ते तो एक जैसे हैं। Sometimes we don't understand some trees like with the leaf. पत्तों के साथ कई बार हम फलों को पहचान नहीं पाते, Tree ko. पेड़ को पहचान नहीं पाते। But with the fruit we can identify. फलों से हमें पता चलता है कि पेड़ क्या क्या है। So when the people understand you, what fruit you have. तो लोग कैसे समझेंगे कि आपके अंदर फल कौन सा है। So the word of God says, if tree is good, its fruit will be good. और प्रभु का वचन कहता है अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। If a tree is bad, its fruit will be bad. अगर पेड़ बुरा है तो फल भी बुरा होगा। Nowadays there is grafting. Grafting means? Oh, एक पेड़ में दूसरा झाड़ का पत्ता लेके आके ग्राफ्ट कर रहा है। और पुराने समय पर एक पेड़ के अंदर दूसरे पेड़ की जड़ को पुराना नहीं, अभी भी है। अभी भी ऐसा है कि एक पेड़ के अंदर दूसरे पेड़ को लगाकर वो बांध देते थे। The grafting branches into a tree trunk illustrates how believers are connected to God's larger spiritual tree. और ऐसे ग्राफ्ट करना पेड़ को दर्शाता है कि विश्वासी कितना प्रभु के आशीषों में और उसकी बढ़ोतरी में जुड़े हैं। We were not good trees. हम तो अच्छे पेड़ नहीं हैं। In book of Romans it is written that we were not a good olive tree. और बाइबल में रोमियो की किताब में लिखा है कि हम अच्छे पेड़ नहीं हैं। We are wild olive tree. और हम तो जो उजाड़ में एक अंजीर के पेड़ जैसे हैं। But Jesus is the good olive tree. और प्रभु यीशु एक अच्छे पेड़ हैं। पेड़ And he brought that branch of the wild olive tree and he grafted into his good olive tree, so that the good olive trees, all good natures will come to the bad olive branch. और क्या किया प्रभु यीशु जी ने, वो जंगली जो क्या बोलते हैं ओलिव को, Olive tree बोलो बस। ओके, जो जंगल की पेड़ था उसको लेकर आकर प्रभु यीशु जो खुद एक अच्छे पेड़ हैं उसने एक साथ जोड़ दिया ताकि वो उसकी अच्छाइयाँ उस पेड़ में जाकर बस जाएं और वो भी एक अच्छा फल लेकर आए। In John, Jesus says, John chapter 15 verse 4 to 5, Jesus said, Jesus is the good wine. और यूहन्ना की किताब में वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु एक अच्छी दाख रस है। And we brought, Jesus brought us and grafted into his good wine. और प्रभु यीशु ने हमें लिया और अपने अंदर उसने एक अच्छी दाख रस में उसने जोड़ दिया। So that if we are united with Jesus, so till when we are united with Jesus,
we will bring good grapes. और जब हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाएंगे तो हम अच्छे अंगूर के फल लेकर आएंगे। John chapter 15 verse 4 and 5. यूहन्ना की किताब 15 अध्याय का 4 और 5 वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता के साथ बनी न रहे तो अपने आप में से कोई फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। If you want to bring the good fruit, अगर आपको अच्छा फल लेके आना there है, are 2-3 things. 2-3 बातें होनी चाहिए। Jesus is telling, unite with Jesus प्रभु यीशु कहते हैं कि यीशु के साथ बने रहो, and depend on Jesus यीशु के ऊपर निर्भर रहो and attached to Jesus. और यीशु के साथ जुड़े रहो। Unite means you need to believe what Jesus taught. बने रहना मतलब कि जो कुछ प्रभु यीशु कहते हैं वो सच है। Dependence means you should leave your pride and rely on Jesus, and all things you need to ask the Lord to do. निर्भरता का मतलब क्या होता है कि अपने घमंड को, अपने आप को भूलकर उसके ऊपर निर्भर हो जाना और उसकी बातों पे बने रहना। Attached means you need to learn from Jesus. जुड़ना मतलब कि उसके प्रभु यीशु से सीखना है। You need to exercise faith in Jesus. विश्वास का अभ्यास प्रभु यीशु के साथ करना है। Jesus is the main vine tree. और प्रभु यीशु ही दाखलता है, We are the branches upon that vine. हम उस दाखलता की टहनियां हैं। Till when you are connected with the main tree, अगर आप उस दाखलता के साथ जुड़े रहेंगे you will have the good grapes from the main, the tree which is Jesus. और आपका अच्छे अंगूर का फल लेकर आएंगे जो दाखलता प्रभु यीशु है। Always trust in Jesus for everything. हर बातों के लिए प्रभु यीशु पे भरोसा Have faith रखें, in Jesus for everything. हर बात के लिए विश्वास यीशु पे रखें, Attached with Jesus for everything. हर बात में प्रभु यीशु के साथ बने रहें, Unity with Jesus for everything. हर बात में यीशु के साथ एकता रखें, Depend on Jesus for everything. हर बात के लिए प्रभु यीशु पे निर्भर रहें। This all will make you to bring the good fruit. हाँ, ये सारी बातें आपको एक अच्छा फल लेके आने के लिए बनाती हैं। The Spirit has the fruit. आत्मा में फल है So that fruit, we are the tree. और हम वो फल लेके आने के लिए जो हम पेड़ हैं। Matthew chapter 7 verse 16 to 20 says, मत्ती की किताब Matthew 7, मत्ती 7 अध्याय का 16 to 20. 16 से 20 तक। मत्ती 7 अध्याय का 16 से 20 तक। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लेके आता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। If the Holy Spirit is in you, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, the presence of the Holy Spirit is in you, अगर पवित्र आत्मा की हजूरी आपके अंदर then है, the result should come, that is the fruit. और जो नतीजा आएगा वो फल होगा। That is a result, the natural result. वो साधारण एक फल, नेचुरल फल आपके अंदर से होगा। Did you go to the forest anytime? कभी आप जंगल में गए हैं? Sometime you have to go. आपको कभी कभी जाना चाहिए। When you go to the forest, you will see there are fruits. जब आप जंगल में जाते हो तो आप फल देखते हो। Monkeys are eating, बंदर खाते हैं, birds are eating. पंछी खाते हैं। They have the fruits in the forest. जंगल में फल होते हैं। Who put the water? कौन पानी देता है? Who put the manure? कौन खाद्य पदार्थ डालता है? Who take care of that trees? कौन उस पेड़ को संभालता है? God himself.
प्रभु खुद उसी संभालते हैं। Presence of the Holy Spirit is in your spirit. पवित्र आत्मा की हुजूरी आपकी आत्मा में है, There is a natural result. उसका एक साधारण नतीजा आता है। The fruit of the Spirit should come from you. और जो फल का आत्मा का जो फल है वो आप में आना है। If you are really born again, अगर आप दोबारा जन्म पाए if हुए you are हैं really repented and accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, और अगर आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर माना हुआ है, then you will bring the good fruit. तो आप एक अच्छा फल लेकर आएंगे। If you are not bringing the good fruit, अगर आप एक अच्छा फल नहीं लेके आते then your salvation is something wrong. तो आपके उद्धार में कुछ गलत हो गया, You are living the spiritual life is something wrong. तो आपका पवित्र जो आत्मिक जीवन है कुछ गलत में है। What is the fruit which the Holy Spirit is bringing? वो पवित्र आत्मा का फल कौन सा है? It is written in Galatians chapter 5 verse 22. वो गलातियों की किताब 5:22 में लिखा हुआ है, Joy, love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness. आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। Does this are coming from out of you? क्या आप में से ये फल आते हैं? Then you are a good tree. तो आप एक अच्छा पेड़ हो, Your salvation is perfect. तो आपका उद्धार अच्छा You में जा have रहा है। received the Holy Spirit. आपने पवित्र आत्मा को पाया है। If you don't have love, अगर प्यार नहीं है, if you don't have joy, आपको आनंद नहीं है, if you don't have peace, अगर शांति नहीं है, if you don't have long suffering, अगर आपको धीरज नहीं if you है, don't have kindness, आपको कृपा नहीं if है, you don't have goodness, आपको भलाई नहीं है, if you don't have faithfulness, अगर विश्वास नहीं है, then your salvation is wrong. तो आपका उद्धार गलत हो You गया। need to get saved. आपको उद्धार चाहिए, For that you need to repent it. तो आपको तौबा चाहिए, For that you need to believe in Jesus आपको Christ. विश्वास करना प्रभु For यीशु that में, you need to accept Jesus Christ. आपको यीशु को स्वीकार करना So है, that you can confess Jesus is raised from the dead and Jesus is my Lord and my और Savior. आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु आज मुर्दों में से जी उठे, वो मेरे परमेश्वर हैं। Then you will receive the Holy तो Spirit. आपको पवित्र आत्मा मिलेंगे। If you receive the Holy Spirit, जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा the third year sure that fruit will come तो out. आज तीसरे साल बहुत जरूरी है कि वो फल आएगा। How many years now you are got saved? आप कितने साल हो गए उद्धार पाके? If it is the third year, अगर ये तीसरा साल है then you have to, your fruit will come out. तो आपका फल आएगा। What is blocking? किसने रोक के रखा You है? have to remove that blockage. आप उसको तोड़ना है, बाहर निकालना है। Sometimes the banana tree will bring its flower, और कई बार जो बनाना का वृक्ष होता है वो फूल लेके आता है, but sometimes it won't come out. और कई बार इसमें कुछ भी Something is blocking. कुछ भी नहीं आता, किसी ने रोक के रखा होता So है। that blockage we have to remove. हमको वो जो रोकने वाली Then जगह है तोड़ के the निकालना flower है, will come, तो फूल उगेंगे, the fruit will come. तो फल आ जाएगा। So what is blocking in your life? तो आपके जीवन में कौन सी रुकावट है? Find out it in your prayer and meditation of the word of God and asking God. आपकी प्रार्थना में उसे ढूंढिए, वचन में उस पे ध्यान कीजिए और प्रार्थना करके उसे निकाल The दीजिए। word of God will show you. पवित्र वचन आपको Holy दिखाएगा, Spirit will show you. पवित्र आत्मा आपको Then you दिखाएगा। need a desire to remove it. आपको एक इच्छा होनी चाहिए You कि need मुझे to इसे repent निकालना about है। it. जब आप तौबा करेंगे, Last week we heard that don't grieve the Holy Spirit. प्लस पिछले हफ्ते हमने सुना है कि पवित्र आत्मा को दुख मत दीजिए। Don't speak blasphemy against the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ मत बोलें। So if you have something said against your seed, अगर आपने कुछ आपके बीज के खिलाफ कुछ किया है, you need to repent and ask the Holy Spirit to be your friend and continue to grow in you. और आपको प्रार्थना करना है, तौबा करना है और पवित्र वचन से आपको वो बढ़ोतरी की तरफ जाना Next है। week we will see the fruits of the Holy Spirit. हम अगले हफ्ते आत्मा के फल देखेंगे। So you go and meditate the same word. आपको जाकर इन वचनों को ध्यान देना Pray है about bringing more fruit. और
फल लेके आने के लिए प्रार्थना You करना are है। created to bring fruit. आप इसीलिए बनाए गए हैं कि फल लेकर You आएं। are born again to bring fruit. आप इसीलिए दोबारा जन्म पाया कि आप You are फल लेकर आएं। received the Holy Spirit to bring fruit. आपने पवित्र आत्मा पाया ताकि आप फल लेकर आएं। If it is blocked, then the block will be removed by Jesus, the power of the Holy Spirit. अगर ये रुकावटें हैं तो प्रभु यीशु की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो निकलने You चाहिए। need repent and to pray. आपको तौबा करके प्रार्थना Then करना the है, Holy Spirit will do His part. तो पवित्र आत्मा अपना काम करेंगे। Let us close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद Let कीजिए, us examine our life. अपने आप अपने जीवन को झांकें। Let us find out what is blocking आप my क्या- spiritual growth. आत्मिक रुकावटों में क्या बंधन है, What is wrong in my life? मेरे जीवन में क्या गलत है। I want to bring the fruit of the Spirit. मुझे आत्मा के फल लेके आना I है, want to grow in spiritually. मुझे पवित्र आत्मिकता में बढ़ना है। I am living in grace. मैं अनुग्रह में जी रहा One more हूँ year is granted. और मेरे लिए एक और साल दिया गया In है, this year I should be fruit. और इस साल मुझे फल लेके आना है। So I need to surrender my life. मैं अपना जीवन समर्पण करूंगा I understand what is wrong in my life. और मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर I क्या need गलत to है, avoid the things which is affecting the growth of my fruit tree. और मैं उन सारी रुकावटों को निकाल दूंगा जो रुकावटें मेरे आत्मिकता बीज को रोक रही I हैं। take a decision to make my climate and weather condition perfect. और मैं हर एक मौसम को जो मैं ऐसा अच्छा बना दूंगा कि मेरे बीज को वो तरक्की मिले। Avoiding the wrong friendship, avoiding the wrong watching, avoiding the wrong listening, avoiding the evil thoughts, avoiding the wrong circle. और सारे वो गलत विचार रखने वाले, गलत बात करने वाले, गलत काम करने वालों को मैं उसे उनमें बीच में नहीं जाऊंगा, उनको अवॉइड करूंगा। From today onwards, I will read the word of God. I will listen only the spiritual messages. I will watch only the spiritual messages. I will have good friends who is speaking the spiritual things. और मेरे अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे काम करने वाले दोस्त होंगे, वही दोस्त होंगे जो आत्मा में बात करते हैं। थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ। आइए सब अपनी जगह पर खड़े होंगे और हम सब प्रार्थना में यीशुआ से मांगेंगे, थैंक यू यीशुआ कि मुझे ऐसे ही बना जैसे आप हैं प्रभु। थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ। थैंक यू यीशुआ, ओ ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर बना, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर बना, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया,
संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। आहा हालेलुया, 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 आहा आमीन। दिल से उसे कहें। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। यस लॉर्ड यीशुआ, सारी सृष्टि आप ही हमारे बनाने वाले हैं प्रभु, तुम ही हो, आप ही हमारी सुरक्षा करने वाले हैं प्रभु। खुदावंद यीशुआ, हमने आज सीखा है कि हम फल लेके वाले बने। यीशुआ, हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके अनुग्रह के लिए अपने हाथों को उठाकर गाएं। यीशुआ ने जो आपको एक और साल दिया है, आप उसे कहें, यीशुआ, मैं आज से ये निर्णय लेता हूँ, मैं सारी गलत संगति को छोड़कर यीशुआ अच्छा फल लेके आने के लिए कोशिश करूंगा। आप मेरी सहायता करें यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
आप एक निर्णय लें, प्रभु मैं संसार की सारी बातों को छोड़कर, सारी चुगली, सारी निंदा, जो भी पवित्र आत्मा के फलों के, आत्मा के फलों के खिलाफ जितने भी काम हैं, मैं सब छोड़ दूंगा। मैं शरीर की वासनाओं को छोड़ दूंगा, मैं संसार की सारी बातों को छोड़ दूंगा और मैं आत्मा में फलदायक बनूंगा। खुदावंद आपने अपने दास के द्वारा जो हमें एक और खुदावंद यीशु साल, आपका अनुग्रह का साल हमें दिया है यीशु, आज हमने वचन में सुना है, ये आप हमारे लिए एक और मौका ढूंढते हैं प्रभु। हम खुदावंद वो फलदायक बने जिसके साथ प्रभु आप जुड़े हुए हैं। हम वैसे वो बेल के साथ जुड़ जाएं जो आप चाहते हैं प्रभु। खुदावंद हमें ऐसे फलदायक बनाएं। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से थैंक यू यीशु। हम सब प्रार्थना करें, कोई भी अपना मुंह बंद न रखे। अगर आप विश्वास करते हैं कि ये बात आज खुदावंद ने मुझसे की है, तो आप दुहाई देकर प्रार्थना करें, यीशुआ मुझे फलदायक बनाए, मुझ में से सारी बुराई के जो फल हैं वो निकल जाए, सारे गुस्सा करने के फल निकल जाए, लड़ाई करने के, झगड़ा करने के और गलत विचार करने वाले, गलत संगति रखने वाले हर एक फल को मैं काट कर फेंकता हूं। हम अच्छे फल बनना है, अच्छे पेड़ बनना है। आपके वचन में आपने सुना है, कोई निकम्मा फल अच्छा फल नहीं दे सकता और कोई अच्छा पेड़ वो निकम्मा फल नहीं दे सकता। यीशु में हम अच्छे पेड़ हैं और अच्छा फल लेकर आएंगे। अगर विरोधी ने कोई गलत बीज दिया है, तो हम यीशु के नाम से उस बीज को रोकते हैं अपने पैरों के तले, जो अधिकार हमें यीशु ने दिया है। आप गलत विचारों को, संसारिक बातों से अपने आप को अलग करें। आज जो खुदावंद के दास ने सिखाया, आपको अलग होना है। आप प्रार्थना करें कि मैं अलग हो जाऊं, यीशुआ में अलग हो जाऊं, यीशुआ में अलग करता हूं अपने आप को। मैं यहां से जाकर एक आलस और नींद में न जाऊं, बल्कि मैं आज जो वचन सुना है उसकी पैरवाई करूं, उसकी संभाल करूं और अच्छा फल लेके आने वाला बनूं। यीशुआ के नाम से हर एक विरोधी का जो योजना है आपके जीवन से कैंसिल हो जाए। हर एक विरोधी की, शैतान की योजनाएं आपके जीवन से कैंसिल हो जाएं। वो आत्मिक बढ़ोतरी को रोकने वाले सारे बंधन टूट जाएं। आप पहचाने कि ऐसे कौन से बंधन है जो आपको आत्मिकता की बढ़ोतरी में रोक रहे हैं। क्या आपका आलसपन, क्या आपकी सुस्ती, क्या आपके गलत विचार, क्या आपकी गलत संगति, क्या आपके गलत निर्णय अगर आपको आत्मिकता में रोक रहे हैं, तो यीशु ने आपको आज एक मौका और दिया है। तौबा करें, मन फिराएं, वापस मुड़ाएं। यीशु अपनी बाहें फैलाए आपके लिए खड़े हैं। आपको मुड़ना है। आप प्रार्थना करें, मैं संसारिक बातों से मुड़ाऊं, मैं यीशुआ आपको प्रसन्न करने वाला बनूं, आपका पुत्र होकर जीऊं, आपके फल में आ जाऊं यीशुआ, जो आप फल देना चाहते हैं प्रभु। क्योंकि आप ही ने मुझे कहा है प्रभु कि अच्छी दाखरस आप हैं, मैं आपकी टहनी बन जाऊं। मैं वो टहनी ना बनूं जो आपसे अलग हो जाएगी प्रभु, मैं वो टहनी बनूं जो आपके साथ जुड़ी रहे और 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें भाई। मेरी प्रार्थना मेरे लिए है, आप अपने लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। ओ ग्लोरी 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 रिखारा पापा पापा शांतरा सिखारा पापा शांतरा सो। राजा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। मेरे परमेश्वर यीशुआ, जैसा आप चाहते हैं वैसा हम बन जाएं मेरे परमेश्वर यीशुआ। हम ये मेरे परमेश्वर जो चीज़ें आपसे अलग करती हैं खुदा, हम उनको छोड़ते हैं मेरे पिता यीशुआ जी। हम निर्णय लेते हैं मेरे परमेश्वर यीशुआ, और हमें आपकी सहायता चाहिए मेरे प्रभु यीशुआ जी। क्योंकि मेरे परमेश्वर आप साथ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं खुदा। आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा इज्जत, सारा जलाल और सारी महिमा हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम को देते हैं। प्रभु यीशु